بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے جائم بے نظیر نشو نما سینٹر، ادائیگی مرکز اور ڈائنامک رجسٹریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو مستحق خواتین کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ روبینہ خالد نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو 1 کروڑ سے زائد مستحق گھرانوں کو سہارا دے رہا ہے، آج ڈیجیٹل والیٹ کے اجرا کے ساتھ باضابطہ طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں EDU ٹریننگ یوٹیوب چینل۔ ویورز، میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ کی ملنے والی سم کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ کس طرح سے کھول کر اپنی قسط وصول کر سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں یہ طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جن افراد کو سم نہیں ملی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خواتین پیسے لے رہی ہیں تو وہ اپنے پاس موجود ٹیلی نار کی جائز کی سم پر بھی اکاؤنٹ کھول کر پیسے لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی۔ اب آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ اپنا اس سم پر کس طرح سے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور جن کے پہلے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں انہیں دوبارہ اس سم پر کیسے اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ ویورز، آپ کو مکمل طریقہ اکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ بے نظیر پروگرام کی ملنے والی سم پر آپ کس طرح سے اپنا بے نظیر کا اکاؤنٹ کھول کر ATM کارڈ یا اپلیکیشن یعنی جیسے ایزی پیسہ اور جائز کیش ایپ ہوتی ہے، اب آپ کو یہ پیسے قسطیں 14,500 روپے جو کہ بہت جلد شروع ہو بھی گئے ہیں اور لوگوں کو میسج بھی آ رہے ہیں، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آگاہ کروں گا۔ اسی کے ساتھ ویور ایک ضروری پیغام ہے، جو خواتین پیسے لے رہی ہیں یا جو نااہل ہیں، وہ پیغام کیا ہے اگلے 2 منٹ میں آپ کو باقاعدہ ویڈیو میں بتاتا ہوا نظر آؤں گا۔ 8171 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر آپ نے اپنے آپ کو کبھی چیک کیا ہے تو آپ نااہل ہیں یا آپ کو میسج آیا ہے 8171 سے کہ آپ نااہل ہیں؟ آپ نے بالکل اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ نااہل ہو گئے اور پیسے اور سیم قسطیں بند ہو گئی، آپ کو بھی مل سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اور تمام قسطیں 2 سے 3 سال تک آپ لے سکتے ہیں۔ نااہل افراد بھی، خود کو نااہل نہیں کہنا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نااہل ہو گیا ہوں اب مجھے پیسے نہیں ملیں گے اور سم نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ مجھے نہیں ملے گی تو پھر ملنی بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں اہل ہوں اور مجھے لازمی ملنی چاہیے، میں اس چیز کے لیے حقدار ہوں، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو سم اور یہ قسط لگوا کر رہیں گے۔ طریقے میں بتاؤں گا اور عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، اس کے لیے میری تمام اپڈیٹس آپ مکمل سنیں۔ اسی طرح نااہل افراد کے متعلق میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ سم لے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ حکومت کی جانب سے یہ سم دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی، اس کے بارے میں آپ کو مختصراً ابھی بتا دیتا ہوں اور اس کی ڈیٹیل آگے جا کر بتاؤں گا تاکہ میرے جتنے بھی ویور ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، راشن پروگرام یا حکومت کے تمام پروگراموں، خاص طور پر نگہبان راشن اور رمضان پیکج کی بار وقت اور 2-3 مہینے پہلے آپ کو ساری ڈیٹیلز اسی چینل پر مل جاتی ہیں جب کوئی بھی اس طرح کی سبسڈی کا پروگرام شروع ہوتا ہے۔ ویور، سب سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ رمضان میں حکومت نے جو 5,000 روپے دیے تھے وہ صرف خواتین کے لیے تھے۔ یہ صرف شارٹ بتا رہا ہوں، ڈیٹیل آگے ہے اور ضروری پیغام اس اپڈیٹ کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ رمضان میں جو حکومت نے 5,000 روپے دیے تھے وہ صرف خواتین کے لیے تھے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے یہ پیسے جو ہے آپ کو سم پر دیے گئے تھے۔ 9,999 کا کوڈ آپ کو یاد ہے نا؟ لیکن بہت بڑی تعداد میں خواتین کے اکاؤنٹس اور سمیں ان کے شوہر، بیٹے یا بھائیوں یا کسی اور کے نام پر تھی۔ جب پیسے آئے تو بہت سارے مردوں کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے اور حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب تمام خواتین کو سمیں دی جائے، اس لیے سمیں دی جا رہی ہیں، اس لیے اکاؤنٹ کھولے جا رہے ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، آئیے پھر آپ چلتے ہیں۔ ضروری پیغام کیا ہے وہ آپ ضرور سنیں۔ عورتوں کو سمیں مل چکی ہیں ان کو اس سم پر ایک کوڈ ملانا ہے۔ ایک ضروری پیغام جو ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا،
अब आपको कोड किस तरह से डायल करना है कि आपको आपकी सिम मिल जाए। हर सिम पर मुख्तलिफ कोड होगा, उसको व्यूअर जैसे ही आपने सुन लिया है कि जो भी आपको सिम मिलती है उसका कोई ना कोई नेटवर्क होता है। मिसाल के तौर पर टेलीनॉर की जो सिम है उसके ऊपर इजी पैसा के अकाउंट खुलता है, जैज़ की सिम के ऊपर जैज़ कैश का, यू फोन की सिम के ऊपर यू पैसा का। इसी तरह हर कंपनी के मुख्तलिफ कोड हैं। जैज़ का कोड 4444 यानी 4 दफ़ा 4 है, और टेलीनॉर इजी पैसा का 3737 है, और यू पैसा का भी इसी तरह अपना कोड है। तो जो भी सिम आपके नेटवर्क की होगी, मेरी अगली वीडियो इसी चीज़ पर आने वाली है। आइए फिर चलते हैं, आपको बकिया डिटेल्स भी बताते हैं कि अकाउंट कैसे खोलना है, नए अफराद कैसे शामिल होंगे, नए और प्रोग्राम कौन से आने वाले हैं जिसमें आप जल्द अज जल्द अप्लाई करके अहल हो सकते हैं। राशन कार्ड की डिटेल भी इसी वीडियो में होगी, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि आजकल दिन में 2 वीडियो ज़रूर आपको तो जिसमें नई मालूमात हो। दोबारा बता रहा हूँ, नई मालूमात वाली वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। EDU ट्रेनिंग की मालूमात परफेक्ट, सच्ची और खरी होती है। इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, वीडियो व्हाट्सएप करें। यही वाहिद चैनल है जो EDU ट्रेनिंग है। यूट्यूब पर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुतालिक ऑथेंटिक, सच्ची और खरी मालूमात बताता है। मेरे जो रेगुलर व्यूवर हैं वो कमेंट में ओके लिखें। वीडियो कोशिश करूँगा छोटी बनाऊँगा और ऐसा ऐसा सादा अल्फाज में बताऊं, ताकि मेरे जो पढ़े लिखे व्यूवर नहीं हैं, व्यूवर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ आ जाए। अब चलते हैं अगले हिस्से की व्यूवर, तरफ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हुकूमत की जानिब से ये जो सिमें दी जा रही हैं, जिसमें यूफोन, टेलीनॉर, जैज़ कैश और जोंग, ज़िला झांग में यूफोन की सिम है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर पर चीज़ों की समझ आ जाए। 18 हज़ारी में टेलीनॉर, शोरकोट जोंग, अहमदपुर सियाल जोंग, सहीवाल टेलीनॉर, चीचा वतनी टेलीनॉर, डेरा गाजी खान जोंग, जामपुर जोंग, रुझान टेलीनॉर, राजनपुर जोंग, जैबकाबाद यूफोन, कश्मीर जोंग, राजनपुर में भी जोंग की सिम और मुजफ्फरगढ़ में टेलीनॉर की सिम। व्यूअर, ये कुछ चंद एक अजला की मैंने सिमें और उनकी कंपनीज शेयर की हैं आपके साथ। अब आपको ये जो जायज़ के हवाले से होगा, टेलीनॉर के हवाले से और यू के, इन तमाम के कोड्स को किस तरह से आपने मिलाना है और आपने इस अकाउंट की चेकिंग किस तरह से करनी है, इसके लिए मेरी अगली वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको सही इतलात और मालूमात के साथ वीडियो में कुछ बता सकूं। अब तक जो आपको बताया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये जो सिम है, तमाम वो ख़वातीन जो पैसे ले रही हैं उनको तो दी जा रही है और मिल भी चुकी है। अब इसमें किस्त वाला मैसेज भी आना शुरू हो गया है और बहुत सारे व्यूवर ये भी पूछ रहे हैं कि हमें ये किस्त कैसे शो होगी या कैसे पता चलेगा। व्यूवर, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बात आपको आप पूछनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिम का जो अकाउंट है उसमें ही डायरेक्ट किस्त आना है। लेकिन फिर भी आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको जैसे बताया है कि माह रमज़ान में 5,000 रुपये दिए गए थे और जैसे वो आपने इस्तेमाल किए थे ये भी उसी तरह ही होगा। ख़तून ख़ुद दफ्तर या सेंटर जाएगी सिम लेने के लिए। हुकूमत का नया निज़ाम इसलिए लाया गया है ताकि पैसों की कटौतियों, आपका जो किरायों पर ख़र्चा, धक्कम पेल, अंगूठे का ना लगना, काफ़ी सारे मसले मसाइल थे पिछले 4 सालों से, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस चीज़ को ख़ात्मा किया गया है। औरत जिसके नाम पर सिम है वो खुद दफ्तर जाएगी या जहां से सिम मिल रही है और उसके अपने नाम की नई सिम दी जाएगी उसको, यानी जो ये सिम है औरत को ही मिलेगी, मर्द को नहीं मिलेगी। और इसी सिम के ऊपर आपका BISP का जो अकाउंट है जिसमें पहले पैसे आते थे और अंगूठा जाके लगाते थे आपको मिलता था, अब एक दफ़ा अंगूठा लगाना पड़ेगा और अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एक दफ़ा OTP, पैसे और तमाम मैसेजेस इसी सिम पर आएंगे। और इसके अलावा शोहर, बेटा, भाई पैसे इससे नहीं निकाल सकेगा। पैसे सिर्फ उसी खतून की रसाई में रहेंगे जिसके हैं। अगर हाँ वो ख़ुद दे देती है तो वो उसकी फिर उसके ऊपर मुनहसर होता है। आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप BISP सेंटर पर जाएं और वो सिम अकाउंट के साथ लिंक कर दी जाए
अगर नहीं है तो पहले मोबाइल कंपनी से अपने नाम पर सिम बनवाएं, फिर BISP सेंटर पर जाएं और नया लिंक बन जाएगा। समझ आ रही है बात की? खतून को क्या करना चाहिए इस हवाले से कि अगर उसके नाम पर जो है सिम पहले से कोई सिम मौजूद है, जैसा कि जैज़, जोंग, यूफोन, टेलीनार, ये अकाउंट खोलने के मुतालिक भी बताता हूँ, वो सिम BISP अकाउंट से लिंक हो सकती है या नहीं। अगर खतून के नाम पर सिम नहीं है तो फिर नई सिम बनवाना पड़ेगी। अगर पहले कोई सिम मौजूद है तो उसे ख़त्म करवा कर ये सिम आपको बाद में फ़ौरन से जारी कर दी जाएगी। खतून को पैसे सिर्फ खतून तक ही पहुँचेंगे, घर की मर्द पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। यानी कि जिसके पास वो इजाज़त देगी वही पैसे ले सकेगा। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि पहले जो आप रिटेलर के पास जाते थे, कैंप साइट्स पर जाते थे, वो वाली चीज़ ख़त्म की जा चुकी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको अहम तरीन इन्फॉर्मेशन बराह रास्त और बर वक्त मिलती रहें। अपनी सिम को वॉलेट अकाउंट में टैग करवाएं और वो भी आपको जहां से सिम मिलेगी वहीं से होगा। व्यूअर, इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप BISP वॉलेट अकाउंट सिम अजरा के लिए अहल हैं जिन्हें 8171 पे ये शो हो रहा है और साथ ये भी लिखा होगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपना एक दफ़ा ID कार्ड नंबर 668 पर भेजकर चेक कर लें। अगर 5 सिमें मौजूद हैं तो फ़ौरन से किसी भी कंपनी की एक सिम जाके ख़त्म करवा लें ताकि आपको 8171 न्यू पेमेंट मॉडल के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम मिल जाए। जब आपको सिम मिल जाएगी आप दोबारा 8171 वेब पोर्टल पर जाके चेक करेंगे ताकि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर BISP वॉलेट सिम जारी हो चुकी है और फिर साथ लिखा होगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। इस हवाले से ताज़ा तरीन डिटेल के लिए मेरे इस चैनल से आपको मालूमात मिलती रहेंगी। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसी तमाम ख़वातीन जिनको पैसे नहीं मिल रहे या नाअहल हैं, जांच पड़ताल हैं, वो इसके लिए अहल हो सकती हैं। और बैंक अल फलाह के जो BISP वॉलेट ओपन हो रहे हैं तो आपको ऐसा जो है शो हो रहा होगा कि सिम इशू की जा रही है, अभी उन पर वॉलेट अकाउंट नहीं खुल रहे। सबसे पहले याद रखें आपको सिमें मिलती हैं क्योंकि आपका एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको बताना, जो ज़रूरी पैगाम है वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपके तहसील या ज़िला में HBL था, बैंक अल फलाह था, जैज़ था, जैज़ कैश था, इजी पैसा था। इससे पहले भी मरहलावार कुछ बैंक्स रिटेलर्स के ज़रिए पेमेंट्स कर रहे थे और अब भी थोड़े थोड़े लेवल पर हो रही हैं क्योंकि दिसंबर में ये ख़त्म हो जाना है। सारी किस्तें और सारे पैसे बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, सारे प्रोग्रामों की पेमेंट्स सिम के अकाउंट में आनी है। तो अभी चंद दिन जो शेड्यूल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 25 दिसंबर तक वो तमाम पैसे रिटेलर वाले आप निकलवा लें, उसके बाद आपके वो बंद कर दिए जाएंगे। तो इसी तरह जिनका स्कोर 32 से ज़्यादा है वो नाअहल हैं और जिसका जांच पड़ताल है या नया सर्वे है उनका इन प्रोसेस है और कुछ लोगों का ब्लॉक है। तो अब कुछ इस तरह के तरीक़ाकार भी चेंज किए गए हैं प्रोग्राम उसके। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि 8171 के ज़रिए भी कोई आप अकाउंट खुलवा सकते हैं या आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। जी बिल्कुल, 8171 के ज़रिए ना अकाउंट खुल सकता है ना ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है, बल्कि उससे आपको केस के मैसेज अब भी आएंगे और अहल और नाअहल होने के जांच पड़ताल के मैसेज अब भी आएंगे। बुला के बिल्कुल वैसे का वैसा पुराना सिस्टम के ज़रिए आपको मैसेज आते रहेंगे। लेकिन अब केस का जो मैसेज है इजी पैसा का जो होगा वो 3737 से आएगा, जैज़ कैश का 4444 से आएगा, यूफोन और जोंग का अगली वीडियो में पता करके आपको मुकम्मल क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ बता दूंगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो में जो अहम चीज़ थी कि आप इस सिम पर कैसे अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। व्यूअर्स, आप अकाउंट खोल सकते हैं इस तरह से कि जैसे ही आप सिम लेते हैं बेनज़ीर के दफ्तर से, क्योंकि नया पेमेंट मॉडल जो कैश ट्रांसफ़र का है, विदड्रॉल का है, जो कि आपके डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स अदायगियों का एक नया निज़ाम है, इसके तहत आपको फ़ौरन से अकाउंट खोलकर दिए जा रहे हैं। तो जिसके लिए आपको नए अकाउंट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जाके सिर्फ सिम लेना है और वहाँ पर टीमें बैठे नुमाइंदे
फिल फौर ही आपके जो वो वाला अकाउंट है पहले वाला उसके साथ लिंक करके इस सिम पर नया अकाउंट खोल के आपको दे दिया जाएगा। और जल्द ही एक डिटेल वीडियो आने वाली है तो उसका इंतज़ार करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको कुछ अहम इन्फॉर्मेशन किस्त के बारे में भी बता देता हूँ। किस्त के बारे में आप जानना चाहते हैं, बहुत सारी ख़वातीन परेशान हैं कि जिनकी आज से 6 माह पहले एक किस्त लगी थी और बाद में कोई किस्त नहीं आई। कुछ की 3 माह पहले किस्त मिली है तो अभी तक उनको क्लियर ही नहीं है कि किस्त आएगी या नहीं आएगी। तमाम तर लोगों को मैं बताता चलूँ कि 2025 की आखिरी अदायगियों का जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया है और कुछ लोगों को रिटेलर से मिलेंगी और जिनको सिम मिल चुकी है उन्हें सिम के ज़रिए दी जाएंगी। जिनको 8171 वेब पोर्टल अभी सिम शो नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो फ़िलहाल सिम लेने से महरूम रह गए हैं और अगले फेज़ में हो सकता है कि नए सर्वे में अहल होने के बाद उन्हें दोबारा सिम का मौका दिया जाए, तो वो आने वाले वक्त में ही अपडेट्स पता चलेंगी। फ़िलहाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बच्चों के तलीमी वज़ाइफ समेत समाही किस्त 14,500 या 13,500, क्योंकि हुकूमत का ऐलान तो 14,500 पे ही था 2026 के आगाज़ होते ही। तो व्यूअर, इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को